तो हर्ष, ये प्राणायाम के थ्रू यू आर manipulating your inner energy and trying to move away and try to mix it with the universal energy, which is Brahman. So and it's a very interesting process, and like I said, not everybody is interested in that, but if somebody is, then there is a huge There is a path. there is a huge possibility in this area. Yeah, and it's very challenging. It's not easy to do it. People can get stuck in any one of these 6 layers. It is not very easy, but at the same time, it is not as complicated as people have made it out to. Actually, हमारा कोई भी path complicated नहीं है, हम लोग बना देते हैं उसको complicated. Yeah. We have been learning that it takes thousands of years to get this and thousands of years to do that, many lifetimes, and we start believing it. We should stop believing all that. The only thing we should believe is, from this moment onwards, what can I do? That's all. And just do it. And forget about the result, forget about what is coming. Just do it. The doing is the important part. The result comes automatically. तो जैसे हम लास्ट टाइम उज्जयी की बात कर रहे थे, इट इज वन ऑफ द स्मॉल प्राणायामास. तो ये छोटा सा प्राणायाम है, बट इमीडिएटली इट स्टार्ट्स क्लीनिंग अप सम ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द प्राणा. तो उसका असर जो है हमें शरीर के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है इमीडिएटली. योगा जब हम करते हैं तो योगासना जो है उससे हमारे कुछ चक्रास एंड कुछ नाड़ी जो जिसमें से प्राणा जा रहा है वो क्लीन होती है. तो हमें इमीडिएटली उसका असर नजर आना शुरू हो जाता है. तो हठ योगा वगैरह वाज मोस्टली ऑन द फर्स्ट 2 लेयर्स कि अन्नमया कोश और प्राणमया कोश को कैसे कंट्रोल करें. हठ योगा बनाए. उसका असर डेफिनेटली मन के ऊपर तो होता ही है, तो क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेशन की वजह से उसका असर होता है वहां. तो कुंडलिनी की बात करते हैं. अभी मदन तो नहीं आए, बट कोई बात नहीं. तो कुंडलिनी जो है वो शक्ति, इट इज सिटिंग डॉर्मेंट एज इफ ए स्नेक इज सिटिंग 3.5 कॉइल्स बना के, और वो रूट चक्र या मूलधारा चक्र में बैठी है. And with the pranayamas, different types of pranayamas and different other things, मतलब वो it's not कि भाई simply प्राणायाम करने से ही आपको वो मिल जाएगा. Actually ये भी एक भ्रम है. ये चारों पाथ हैं, हम 3 का तो हम जानते थे, बट जो चारों पाथ हैं ये चारों पाथ भी इंटीग्रेट होने चाहिए, तब आपको रियलाइजेशन होता है. That integration is also extremely and very, very important. Without that integration, things will not happen. Like I said, understanding के लिए we can divide them into different paths. Experience के लिए we have to integrate them together. तो चलिए, coming back to this 7 chakras and Kundalini. अब आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि 7 चक्र हैं, उसमें जो चौथा चक्र है जो सेंटर में, जो मिडिल में पड़ता है, वो है हार्ट चक्र, द चक्र ऑफ कंपैशन. हार्ट चक्र के ऊपर के जो 3 चक्र है वो है स्पिरिचुअल. ठीक है. थ्रोट चक्र, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ. थर्ड आई चक्र, स्पिरिचुअल नॉलेज. क्राउन चक्र, कनेक्शन विद द डिवाइन. और जो 3 नीचे के जो चक्रास हैं वो हैं वर्ल्ड रिलेटेड. ईगो,
passion, and instinct for survival. So what we have is the heart chakra, which balances the spiritual and the worldly. The heart chakra is a balancer. आपको वर्ल्ड में भी काम करना है, आपका हार्ट चक्र अवश्य ही उसका स्ट्रांग होना जरूरी है. और उसका प्रोजेक्शन ऐसे होता है कि हम अपने परिवार के साथ प्यार करते हैं. हमारा जो कंपैशन है वो हमारे बच्चों के लिए होता है, वो वर्ल्डली उसमें जाता है. And the same thing, when we talk about heart chakra in the spiritual manner, then we say unconditional love, love everyone, forgive everyone. That goes towards spiritual. So the heart chakra becomes a very important chakra of this whole system of 7 chakras. तो जब हमारी energy is more active in the lower chakras, we are focused more towards the world. When our energy is more focused, more active in the higher chakras, we are focused more towards the spirituality. The result is when the spiritual energy increases, automatically the worldly energy reduces. And when the worldly energy increases, automatically the spiritual energy reduces. You see how this will function, क्योंकि 7 चक्रास हैं और चौथा चक्रा जो है आपको बैलेंसर बैठा है वहां पर. So when the Kundalini rises, it rises from the root chakra and crosses the heart chakra and starts going in the spiritual realm. So then some of the pranayamas became very, very important in this path. But although there are others, जैसे हठ योगा था, तो they were more interested in cleaning of the body, cleaning of the mind a little, not about self-realization. तो उन्होंने फिजिकल योगा के ऊपर, योगासना के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया. एंड राज योगा में उन्होंने उसको, पतंजलि ने उसको अष्टांग योगा में डिवाइड किया. जो 8 अंग हैं उसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो उसने थोड़ा इंटीग्रेशन करना शुरू किया कि ये दिस विल वर्क विद योर behavior, your mind, your truthfulness, your vairagya, your understand, and then go to concentration and then meditation. And so he divided this and he tried to integrate this together as a Ashtanga yoga. So if you will read about Raj Yoga anywhere, you will see that this is always also called Ashtanga Yoga, 8 limbs of the yoga. Then there is a complete branching जिसके अंदर प्राणायाम became the most important aspect. तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ and my experience कि जब मैंने ये अनुलोम विलोम जो शुरू किया था, अनुलोम विलोम is a detoxifier. It's a detoxifier of physical body as well as your mental body. तो जब ये कई साल पहले मैंने अनुलोम विलोम शुरू किया, तो my experience after about a week of doing it was कि एक दिन मुझे सडनली मेरी बॉडी इतनी क्लीन लगी, इतनी क्लीन फील हुई कि मेरी
जो जैसे खाने की इच्छा होती है ना, तो सिवाय फ्रूट्स के और कुछ भी खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। जो कंद मूल फल जो कहते हैं ना हम लोग खाने की बात, मतलब इट बिकेम सो मच कि मैं अगर कुछ और खाता हूँ, मुझे लगता था कि मैं अपनी बॉडी को टॉक्सिक कर रहा हूँ कुछ और लेने से। That kind of a feeling. The body is totally clean. Breath was so clean. It's an amazing feeling. So Anulom Vilom actually is a detoxifier for the physical body as well as your mental body. And this in my personal opinion, Anulom Vilom is one of the most important pranayamas that everybody should do. I totally agree. Then rising of the Kundalini occurs in two different ways. One is by making your effort. That means you do all the pranayamas and integrate the other aspects of different paths, like bhakti का भी करने का है, कर्म भी करने का है, ध्यान भी करने का है, सबको integrate करके, and then you're doing pranayama, then Kundalini may rise. It will be a long process. The second way it rises is by the grace of a guru or a grace of the भगवान. अगर आपने आज मकरंद ने पोस्ट किया था अपना नरेंद्र के बारे में, विवेकानंद, तो अगर आप विवेकानंद की कहानी पढ़ेंगे तो उनके माथे पे हाथ रख के उनको एक्सपीरियंस दिया गया था. अब आप पढ़िएगा तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा. That was the rising of Kundalini by the grace of the Guru. मुझे आज उनका ध्यान इसलिए आया क्योंकि वो बड़े नॉन बिलीवर थे शुरू से ही. हाँ. पर once he had that grace, वो टोटल चेंज हो गया. So once he had that experience, that grace, obviously that experience changes everything, because now suddenly you see something different, totally different. So there are two ways for rising of this Kundalini. One, of course, is a effort, and the other is a grace. And I would say that actually it's a combination. जब effort होती है तो grace आने लगती है, तो grace भी आता है. ठीक है जी. So this whole category of manipulating, managing, and controlling prana is the fourth path in our spiritual quest. And when all the four paths are integrated in our daily life, then it helps us not only in the worldly direction, but it also helps us in the spiritual direction. अगर कभी आपकी इच्छा होगी और इंटरेस्ट होगा तो इसमें और डिटेल में आपके साथ बात करेंगे. हर चक्रा के बारे में कैसे होता है, उसके साथ में कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए, किस चक्रा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप एक सिंपल मेडिटेशन के साथ में कैसे आप अपने प्राण शक्ति जो है शरीर की उसको मैनेज कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है. एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू इट. मैं यहाँ पे कई सालों तक मैं अपने यहाँ ग्रुप में सिखाता रहा हूँ और मैं खुद करता हूँ. इट्स इंटरेस्टिंग. There is one more aspect जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, and that is the mantra aspect. How does mantra work? Gayatri mantra, for example, and the power of the mantra, and how mantras are able to change the prana. And if you use them not like listening like a song, there is a particular way of using the mantras, and that can change the prana. And I think
आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू दिस स्टोरी और नॉट, बट एनीवे मन में आ गई है तो आप लोग इजाजत दें तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक दिन मेरे हाथ में यहाँ उंगली के ऊपर ना एक कट लग गया। नॉर्मल है, कट लग जाता है कई बार तो, और नॉर्मली जो कट हैं हमारे जो शरीर पे लगते हैं वो नॉर्मली जल्दी ठीक हो जाते हैं, 1-2 दिनों में ठीक हो जाते हैं। बट ये कट जो था ये ठीक नहीं होता। वो कट था, वो बंद होता था, 1-2 दिन के बाद में फिर खुल जाता था, फिर बंद होता था, फिर खुल जाता था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते निकल गए, वो पूरी तरह से ठीक ना हो। मैं उसके ऊपर बैंडेड भी लगा दिया, जब बैंडेड खोलूं लगता था ठीक है, फिर खुल जाता था। तो अब ये बड़ी एक इरिटेशन होती है इससे। इतना तकलीफ नहीं है जितना से इरिटेशन है, चुभता है, यू नो ऑल दैट। तो फाइनली एक दिन मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा सामने और मैंने उसके ऊपर गायत्री मंत्र पढ़ा। अब आप माने या ना माने, मेरी आंखों के सामने कट जो था वो बंद हो गया, ऐसे ही आंखों के सामने, एंड इट क्योर्ड। How many times you did? है जी, सॉरी, कितनी बार किया था ऐसे? 21 बार या कुछ 11 बार? ऐसे कोई काउंट नहीं किया था मैंने, बस करते रहे, बस थोड़ी देर किया था, हाँ। मतलब इट कुड बी a few minutes, but एक particular way of doing it, it changes the prana, it changes the energy. If you just hear it कि भाई जगजीत सिंह गा रहे हैं और हम सुन लें तो it's not going to do much, to tell you honestly. But there is a particular way of doing it, and that way if you do it, it changes the energy of the, जिस चीज की भी आप एनर्जी चेंज करना चाहते हैं वो कर देता है। इट्स ए वेरी 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 पावरफुल मंत्र। मैंने तब तक सिर्फ सुना था कि ये पावरफुल है, टू टेल यू ऑनेस्टली, बहुत पढ़ा भी था कि भाई ये बड़ा पावरफुल है, बट कभी उसके ऊपर वो एक एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई ये पावरफुल है। बट जब व्हेन आई डिड दिस, I was shocked. I was shocked. How is this happening? कई अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनमें से एक ये था जो मेरे को शॉक करने वाला था। भगवान ने गीता में कहा है, मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। एग्जैक्टली। बट लाइक आई सेड, मतलब ये सब सुना था, पढ़ा था, बट जब एक्सपीरियंस किया तब समझ में आया कि रियली इसकी पावर कितनी है। एक प्रवीण मोहन करके कभी देखा है आप लोगों ने किसी ने? YouTube पे प्रवीण मोहन एक है। नहीं, नाम तो याद नहीं ऐसे। नहीं, वो he is trying to combine some spiritual ideas with science. तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसी सब्जेक्ट पे, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो मंत्र की जो ध्वनि निकलती है उसकी क्या वेव फॉर्म होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, लाइक ए कैमरा। अच्छा। तो उसने करके दिखाया कि जब ओम की ध्वनि हम निकालते हैं, ओम शब्द की, तो इमीडिएटली एक इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। इन्फिनिटी का जो साइन होता है ना, मैथमेटिकल साइन जो इन्फिनिटी का होता है ऐसे वाला, वो एक जब भी हम ओम की ध्वनि निकालते हैं तो इट क्रिएट्स दैट साइन, दैट हेलिकल दिस वन, वो साइन क्रिएट होता है एकदम उसका, मतलब जो साउंड वेव है वो फॉर्म लेती है एकदम। बहुत बढ़िया। ये मकरंद, आपने नेक्स्ट वीक के लिए हमें सब्जेक्ट दे दिया। नहीं, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा। क्योंकि कई बार जब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मंत्र का उच्चार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मंत्र के उच्चारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र का साउंड ही है सब कुछ।
उसका मीनिंग भी ना समझ में आए, उसका जो साउंड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या वेव क्रिएट करती है और उससे क्या इफेक्ट होता है वो एक अलग चीज है समझने की, लेकिन साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। एग्जैक्टली, ऐसा कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ये ओम सब्जेक्ट रहेगा। मीनिंग ओम पता तो होना चाहिए मकरंद, नहीं तो फिर वो बात नहीं समझ में आती, अदरवाइज मंत्र ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि मैं पर्सनली मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि हम जो भी हम सीख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको जब तक हमारे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ना हो ना, उसका अनुभव जिसको बोलते हैं, तब तक वो सिर्फ नॉलेज जो है वो बोरोड नॉलेज है, वो मतलब इंटेलेक्चुअली समझ आ गई है मगर मालूम नहीं है रियली। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करें उसको। नेक्स्ट वीक में एक्चुअली अनुलोम विलोम कर लेंगे और ओम की बात कर लेंगे। बट उज्जयी जैसे एकादशी उज्जयी की मैंने बात की थी लास्ट टाइम, उसको तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, उसको किया जा सकता है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। अनुलोम विलोम भी किया जा सकता है, वो एक्सपीरियंस होता है उससे। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, हम लोगों को साथ में हमारा विश्वास भी बढ़ता है और हमें पता लगता है कि हाँ भाई कुछ अचीवमेंट हो रहा है इसके साथ। बिल्कुल। चलिए ऐसा मतलब ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि मोर वी नो मोर वी डोंट नो। We desire to know more. बट जो कुछ थोड़ा बहुत जो हमको जो थोड़ी बहुत हमने जो एक्सप्लोरेशन किया है, जो थोड़ा बहुत किया, वो आपस में शेयर कर लेते हैं हम लोग। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पढ़ी थी तो कुछ समझ में आया था, बट जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो लगा अरे ये तो डिफरेंट है यार, ये तो वैसा नहीं है जैसा पढ़ा था। तब मजा आता है उसमें, जब वो पता लगता है अरे यार ये तो डिफरेंट है। जैसे ऑरा है, अभी हम प्राण की बात कर रहे हैं तो ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है। जैसे चक्रास की बात की थी, तो ये चक्रा की एनर्जी को देखा जा सकता है। तो कभी कभी मैं करता हूँ ये, लोगों का चक्रा पढ़ के बताता हूँ कि भाई आपकी ये सिचुएशन चल रही है, तो वो देखा जा सकता है। तो जब शुरू में हुआ कि ऑरा की बात सुनी, तो मैंने कहा यार ऑरा देखना चाहिए, कैसे देखें। तो मैं किताब खरीद के लाया, 2-4 अमेज़न से खरीदी किताबें, उनको पढ़ा, उसमें जो एक्सरसाइज लिखी थी वो करने की कोशिश की। उसमें एक्सप्लेनेशन था कि ऐसे दिखता है वैसे दिखता है। हमने कहा ठीक है, करते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिखा नहीं। बट समहाउ और बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, बहुत सारे काम कर रहे थे। तो सडनली एक दिन मैंने ऐसे अपना हाथ जो था वो ऐसे दीवार के सामने किया, देखने के लिए कि भाई इसका ऑरा क्या है, और मुझे उसका ऑरा नजर आ गया। अब मैंने हाथ ऐसे हिलाया, वहां से हटाया, तो जो उसके पीछे पीछे जो उसका क्लाउड बना एनर्जी का, वो किसी किताब में लिखा ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ ये लिखा था कि भाई हाथ का ऑरा होता है, उसके चारों तरफ नजर आता है, और जब हाथ चेंज करो, इधर से इधर करोगे, तो वो ऑरा जो है हाथ के साथ साथ नजर आएगा। बट ये नहीं लिखा था कि यहाँ से वहां तक जाने में जो उसके पीछे बादल की तरह से उसका जो ऑरा, जो एनर्जी जो उसकी फॉलो करती है, वो उसके बारे में कहीं लिखा नहीं था। तो जब वो देखा तो मैंने कहा अरे ये तो टोटली डिफरेंट है, दिस इज नॉट व्हाट दे वर सेइंग इन द बुक। जो उसकी जो एक जैसे एक स्टीम होती है ना, एक भाप होती है जैसे, उस तरह से एनर्जी जो है वो फॉलो कर रही है। तो इमीडिएटली ये भी क्लैरिटी आई कि जब एक आदमी किसी जगह पे होता है और वहां से छोड़ के भी जाता है जगह से, तब भी अपनी एनर्जी पीछे छोड़ के जाता है। वो कुछ टाइम तक वो उसकी एनर्जी जो पीछे छोड़ के गया है उस जगह पे रहती है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
अगर आप अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो जो एनर्जी जब होती है वो इकट्ठी होती है, वो घंटा 2 घंटा 6 घंटा रहती है उस जगह पर। उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, हम लोग बाकी रूटीन में आ जाते हैं, वो घर की एनर्जी वापस नॉर्मल जैसे हमें आदत है वैसी हो जाती है। जब हम मंदिर में जाते हैं और उस जगह पे जाके जब हम वो उस माइंड सेट के साथ में अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो क्रिएट होती है, तो मंदिर में आप जब वो सारे लोग चले जाते हैं वो एनर्जी है। जब आप वहाँ दोबारा अगर कोई आदमी एंटर करता है तो इमीडिएटली उसको लगता है कि हाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ रुकी हुई है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं ये, तो जैसे जैसे धीरे धीरे इनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको समझ में आना शुरू होता है, तो हम लोग वाह क्या बात, व्हाट एन अमेजिंग वर्ल्ड। है कि नहीं जी? Very true. But it is not complicated. जो मेरी जो कंप्लेंट है वो यही रहती है कई बार कि कॉम्प्लिकेटेड, दे हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, it's very simple. Actually, what you said earlier, you have to make an effort, and the results are not in your control anyway. Why bother about that? Just stay focused on the effort. Yes. That's it. Results will come on their own. It's not the destination that should be the focus of your mind. It is what you are doing to get to the destination that should be the focus of your mind. The process, the action. And as long as you keep enjoying the action, enjoying the process, you will get to the destination. You will get more than the destination. But and this is true not just for spirituality, it is true even for our worldly affairs. Yep. Anxiety comes only when we are focused on the destination. कि आ नहीं रही, मिल नहीं रही, हो नहीं रहा. Just focus on the action and the process of doing it. That's it. चलिए आप भी कुछ बोलिए भाई. आपने बहुत कुछ दे दिया मनन के लिए.